वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। अब तो लोकसभा चुनाव ने जो चुनाव आ गया है और इस चुनाव के मुद्दे पर अब यहाँ पर कुछ संगठन के लोग और कुछ वकीलों ने और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जिला अधिकारी विजयपुर शहर के क्या कि इसलिए इस मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं ताकि शांति भंग ना हो जाए। शांति भंग का मतलब ये होता है ताकि कुछ चुनाव में हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर भाषण कर कर कोई दंगा फसाद या कोई शांति भंग ना हो जाए। इसीलिए सबसे पहले होशियारी रहने के लिए विजयपुर शहर के डीसी ऑफिस को यानी कि जिला अधिकारी को एक मेमोरेंडम देते हैं ताकि आते दिनों में कंट्रोल हो जाए और फेक न्यूज जो भी वायरल करते हैं उन पर भी कानून कार्रवाई हो जाए। अब तो इसके लिए साइबर क्राइम है, मगर कानून में अगर चाहे कोई भी हो, अगर जिसकी भी गलती हो जाती है उस पर तो एफआईआर दर्ज तो होता है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब पुलिस डिपार्टमेंट साइबर क्राइम अब इतना मजबूत और इतना होशियार हो चुके हैं, अगर किसी का भी कोई भी अगर वीडियो वायरल होता है, अगर फेक न्यूज का कुछ भी हो जाता है तो वहां पर कहने की जरूरत नहीं और वहां पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब तो विजयपुर शहर में नहीं, सारे भारत देश में यही कहते हैं। हर मोबाइलों में देखिए, हर जहां पर सोशल मीडिया में देखेंगे सुनेंगे तो हिंदू मुस्लिम के ही नाम लिया जाता है, उस पर ही सियासत की बातें होते रहते हैं और ना जाने कोई कुछ तो करते तो रहते हैं, मगर जितना पहले फेक न्यूज का वायरल हो जाता था मगर अब उतना नहीं होता। कहां पर भी एक होता है मगर उन पर केस तो दर्ज होता ही है मगर दिखता नहीं। क्योंकि अब उसी तरह विजयपुर में अगर किसी ने नेता अगर भला बुरा जात धर्म पर अगर कोई भी ऐसा भाषण करेंगे उन पर कानून कार्रवाई करने के लिए सभी यहाँ पर जो संगठन के लोग हैं इन्होंने यही कहने के लिए जिला अधिकारी को मेमोरेंडम भी देने के लिए आ गए हैं ताकि इसलिए इस चुनाव में शांति भंग ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए, दंगा फसाद ना हो जाए। अगर कुछ भी हो गया तो भाईचारा हिंदू मुसलमान भाई भाई है, ताकि यहाँ पर शांति है, सुकून और अमन का देश है, ऐसा कुछ भी ना हो जाए। इसीलिए इन्होंने आकर आज मेमोरेंडम देते हैं। क्या कहते हैं उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे एक रिपोर्ट में। ಸಾಹೇಬರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಹರಡುವ ಆತಂಕ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಕೇಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ 1, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ನಂಬರ್ 3, ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಗೊಂಡಂತಹ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಹಂಚಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ನಂಬರ್ 4, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ನಂಬರ್ 5, ಸಮಾಜ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. ನಂಬರ್ 6, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ದ್ವೇಷ ಹರಡಿ ಅಶಾಂತಿ ಹರಡುವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತತೆ ಕಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯೂನಿಟು, ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಯೂನಿಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. डीसी ऑफिस में मेंबर लेने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ में एपीसीआर का पूरा ग्रुप है और जो यहाँ पर हम एपीसीआर के ज़रिए मेंबरों ने इसलिए पेश किया जा रहा है कि आने वाला इलेक्शन जो है आ रहा है उसमें हेट स्पीचेस वगैरह होते हैं। इस हेट स्पीच न हो, इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है शांतिता के साथ में पीसफुली जो है यानी इलेक्शन हो। और उसके साथ साथ में कोई भी अगर हेट स्पीच करता है तो उसको सो मोटिव जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हुआ है कि उसके अगेंस्ट रजिस्टर करना चाहिए कंप्लेंट और एफआईआर वगैरह। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एफआईआर और कंप्लेंट रजिस्टर उस आदमी पर हो जो हेट स्पीच करता है। और हम चाहते हैं कोई भी रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट कोई भी हो आदमी, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हेट स्पीच कर रहा है तो पहले उसके नाम पर जो है वो रजिस्टर करना चाहिए कंप्लेंट। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और इनके डीसी के थ्रू से हम चाहते हैं कि ये जो है चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे, उसके गृह मंत्री तक पहुँचे, आईजी तक पहुँचे। इस कॉपी को जो है आने वाले इलेक्शन में जो है शांतिता के साथ में पीसफुली के साथ में हमारा इलेक्शन 2024 का हो। इस वजह से हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए डीसी पास आए हुए हैं। सर, आए दिन जो चुनाव होते हैं उसमें हेड स्पीच तो आप देखें लोग पिछले विधानसभा चुनाव में कितने मरतबा उसके बावजूद भी बहुत सारे किसी धर्म को टारगेट किया जाता है तो उस पर सो मोटो भी नहीं होता। हाँ, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अब ये सब एडवोकेट्स जो आए हुए हैं हमारे साथ, एपीसीआर का ग्रुप एडवोकेट्स का भी है, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है जैसे वो हेट स्पीच करता है उसी दिन जो है कंप्लेंट फाइल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप क्या नहीं होता तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर जो है उसके ऊपर जो केस दर्ज करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? आपका नाम सर? मेरा नाम DS काजी, बीजापुर एपीसीआर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। एपीसीआर के देशव्यापी जो है वो संगठन है और ऑल इंडिया लेवल पर इस संगठन ने जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है वहाँ पर पहुंचकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। अभी आप देख रहे हैं कि ये नफरती जो है भाषणें बहुत ज़्यादा, लोगों से नफरत, ये भाषणें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमेशा हिंदू मुसलमान की बात चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। हम बरसों से सदियों से आपस में हिंदू और मुसलमान भाई भाई बनकर जो है इस देश के अंदर काम कर रहे हैं और शांति से काम कर रहे हैं। शांति भंग न होने पाए और आने वाले इलेक्शन में कोई ऐसा काम न हो जिससे शांति भंग हो। इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को होशियार करना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जो भी नफरत अंगेज भाषण करेगा, हेट स्पीचेस करेगा या फिर वायरल कैसे करेगा उसे मोबाइल में, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। ये
इसके लिए जो है हम सब लोग यहाँ पर APCR की तरफ से जुड़ा लिए हैं और वो मेमोरेंडम आज हम DC को पेश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम महमूद काजी एडवोकेट, नेशनल एग्जीक्यूटिव APC।